Namaskar, sir. Good evening. So, chat box is open for you throughout the session. So you may write whatever comes to your mind. Okay, so we are 100 and there is no room for other to join. And there's a humble request, please be here till the session gets over because this time we have come up with a very beautiful idea being suggested by Mr. Rohit, selfie time. So soon the session is about to over. We will click a smiley. What did you call Rohit this? Smiley moment. Moment. Yes, yes. Yeah, smiley moment. So we'll be hoping to see you till the end of the session so that we can share our smiley moment with the smiling faces. So the selfie will be captured by Rohit at the end of the session. So right now, if you wish, you can switch off your cameras, right? But at the end of the session, just for 2 minutes, it's a humble request to switch on your cameras on that particular time. And throughout the session, if you please keep your audio off, so it's always good. And in case you have any question, you can always ask, you can write in a chat box. We already have received many messages, so we will try to cover everything. So Sanjeev sir, over to you. So let me start very humbly with a sort of, you know, we can say a silence in terms of, the gratitude or whatever we can pray for certain teachers, our friends, जो लोग particularly गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं और उनकी ड्यूटीज जो हैं कोरोना के लिए सर्विस के लिए लगी थी और कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ जो कोरोना से डाउन है इस समय ड्यूटी करते हुए और कुछ ऐसी न्यूज़ भी थी जिसमें कि कुछ टीचर्स जो हैं they have expired in fact in serving the nation. So just a 2 minute silence and a sort of prayers to the Almighty to really do whatever best. I mean from our side. शायद अभी तो वो लोग चले गए हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते except praying for them and their family actually. So that was the suggestion given in the last meeting. So let us start our meeting with a 2 minute silence note, please. Thank you everyone. Okay, thank you all. Meeting start करते हैं. The very purpose of this meeting is कि we are very short of time as far as this particular academic year is concerned, and the reduction of syllabus has already been floated, and our work actually, I mean some of us who are very creative and would like to do wonders with the students, they would feel that probably we are very very short of time in completing that particular syllabus. हमें क्या चीज करानी चाहिए, क्या नहीं करानी चाहिए, किस तरीके से करानी चाहिए, और एक दफा सिलेबस होने के बाद हमारे पास कितना टाइम बचेगा कि हम कुछ क्वेश्चंस को उस तरीके से डील करें कि बच्चों में थोड़ा सा थिंकिंग पावर भी जनरेट हो, थोड़ा इंटरेस्ट भी जनरेट हो, बिकॉज अल्टीमेटली आगे आने वाला साल 11th और 12th 10th के बच्चों के लिए बहुत क्रूशल होगा. So probably 9th and 10th are the foundation stone for 11th and 12th, and we know that there is a gap as far as syllabus of 11th. अगले साल तो रूटीन syllabus आ जाने वाला है. अभी हम थोड़ा सा subdued syllabus 10th में पढ़ाएंगे और 11th में जाके they will be exposed to a full-fledged syllabus. तो बच्चों को कहाँ परेशानी आ सकती है. तो ये सिर्फ हमारे व्यूज हैं. we are not a government authorized body and we are not being subscribed by CBSE. It is just a sort of mutual discussion that we would be doing out here. और हम अपने व्यूज आप तक रखेंगे, आपके व्यूज भी हम लोग सुनेंगे. कुछ हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने हमें भेजे हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने भेजे हैं. उसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस भी होंगे तो we've got chat box working. Probably we would like to deal with all your queries. लेकिन फिर भी हर एक टीचर का अपना अपना व्यू होता है. Maybe we'll have a point of differences
जगह जगह पे, पर एक दूसरे के व्यूज हम सुन के मे बी वी वुड लाइक टू चेंज आवरसेल्व्स और upgrade ourselves so as to finish off the course within stipulated time, and we would like to quench our thirst of teaching as a teacher by taking certain innovative ideas as well. So ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. अमित सर मुझे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. No, not at all. So Vishal ji, you can continue. It was a very small welcome note from my side. आगे Vishal ji would be there, Rahul Sofat would be there, and Pankaj would be there. These three are the experts as far as 9th and 10th syllabus is concerned, and they've worked very hard in making the things pretty smooth to understand, and maybe NCERT wise or question wise उन्होंने बहुत मेहनत की है, and probably I would wish that this session would be very, very useful for us. Vishal ji, over to you. सबसे पहले नमस्कार, good evening everyone, and thank you so much for giving me this chance. Bajaj sir, Sanjeev sir, everyone, thank you so much. So as Sanjeev sir said कि जो लोग जो चीज़ें भी हम शेयर करेंगे that may be, मतलब there is a probability that you won't be satisfied with that. So please share your views. And again, we are not from CBSE. This is the thing कि जैसे हमने इस syllabus change को समझा, but still errors if there are, please guide us. We will rectify that if there. So okay, this image made me give me a big smile. Though I am not in the image, but still I was feeling so happy, so positive to see this. Hope next time जब हमारी meeting हो, I would love to be there. And namaste again to everyone. So we will be discussing for class 10th syllabus first, and then it will be continued with by class 9th. This is a reduced course structure mathematics CBSE class 10. Okay, we'll be going chapter wise. So let us start. And Rahul sir, Pankaj sir, I request you to please keep explaining. Thank you. So this is real numbers. नमस्ते सभी उपस्थित जितने भी टीचर्स हैं, सभी को मेरी नमस्ते. आप जैसा देख रहे हैं, सबको मालूम है कि सीबीएसई ने 7 जुलाई को जो भी हमारे को सिलेबस, रिवाइज सिलेबस और डिलीटेड सिलेबस दोनों के पीडीएफ अवेलेबल थे, और आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट हुआ, उसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर कहीं बार बहुत सारे टीचर्स को कुछ कंफ्यूजन थी, और कुछ जगह पर तो ऐसा था बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पर क्या कट हुआ है और क्या है सिलेबस में. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स. आप अगर इसका रिवाइज सिलेबस देखेंगे तो उसमें यूक्लिड्स डिविजन लेमा, यूक्लिड डिविजन लेमा का बिल्कुल भी कहीं पर भी कहीं मेंशन नहीं है. पुराने वाले सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में इसको मेंशन किया गया था, लेकिन अब हमारे सिलेबस में से यूक्लिड डिविजन लेमा रिमूव कर दिया गया. तो इट मींस दैट्स वेरी क्लियर कि जो एक्सरसाइज 1.1 एंड मोर ओवर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, सिंपल सी बात है कि जो उस एक्सरसाइज से पहले हैं वो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहे. तो पर बेसिकली अगर आप इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने सबसे पहले हमें इसके 15 पीरियड्स अलॉट किए थे, और जो न्यू है उसमें उन्होंने 8. अब सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने 3 टॉपिक्स थे ऑलरेडी, उसमें से एक टॉपिक को डिलीट किया और पीरियड्स 50% कम कर दिए, इट मींस कुछ ऐसी बात होगी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जिसपे हमारा मैक्सिमम टाइम लगता था. सिर्फ ये नहीं है कि उस एक्सरसाइज के 1.1 के सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप देखते जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे वो सारे यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यही एक ऐसा टॉपिक था जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते थे. लेकिन अब हमारे पास ओनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और हमें रेकरिंग और जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है वो पोर्शन रह गया. तो इट मींस इसलिए सीबीएसई ने इसके पीरियड्स भी समझो ऑलमोस्ट 50% कम कर दिए. विशाल सर नेक्स्ट स्लाइड. आप कुछ कहना चाहें तो सर कह सकते हैं.
I have a point to add here. Yes, Rahul sir. What is deleted is Euclid division lemma, Right. and a new curriculum is not framed for this particular session for this year. So when Euclid division lemma is deleted, so question on SCF still can come, because Yes. we have not Yes. defined Euclid division lemma and Euclid division algorithm. Both are not given in the our Syllabus. Right. previous syllabus. So SCF using algorithm can be done, and actually Euclid division lemma is in context to questions which are there on properties of numbers. Like if you see exercise 1.1, the first question on SCF students can be made to do, and questions like proving every positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, those type of questions can be left. And I would say one thing, sir. In exercise 1.1, there is a question. An army, there are 616 members which are marching behind the 32 members. So not using Euclid, but I think this question can be taught. Just we can find the HCF by using another method. Yeah, but SCF, sir, by the Euclid algorithm, using algorithm, Euclid algorithm, SCF is there, and Okay. otherwise you can find SCF LCM by prime factorization method. Yes, sir. Yes. Yeah. It means total exercise 1.1 is not deleted. So Yeah, question first number question. 1. Yeah. Question 1. Sir, actually CBSE or any other body, it is how you interpret. They don't say anything about the mapping with the questions in the exercises, but this is I think, like we But can't sir- be. Yeah, what I'm trying to say is this Euclid division lemma is only pertaining to the questions based on properties of numbers which are there. Those questions we can leave for this particular year. it means you are telling us कि question number 1 जो है Euclid's Yeah. division algorithm से पूछा जा सकता है. Yeah. But that is based upon Euclid's division lemma. अगर हम स्टूडेंट को Euclid's division lemma एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो how can we explain Euclid's division algorithm? क्योंकि that is the step-wise procedure of same thing, Euclid's division lemma. Sir, but like in our syllabus, we have not defined it separately. No, sir. In fact, अगर आप लास्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे उसमें 3 पॉइंट्स थे. फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सेकंड वन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटिंग इन नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स. So clearly in this revised syllabus they totally deleted Euclid's division lemma. So starting from fundamental theorem of arithmetic FTA, so it means all those questions which based upon Euclid division lemma or Euclid division algorithm, जहां तक मैं समझता हूं कि Euclid's division algorithm is the stepwise procedure of Euclid's division lemma EDL. So अगर EDL डिलीट हो गया तो अब उन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन सिलेबस में नहीं है कि हम जो SCF है वो Euclid's division algorithm से पूछ सकते हैं, because that is a stepwise procedure of this is same EDL, जहां तक मैं समझता हूं सर. तो I think if exercise 1.1 is totally deleted, all those questions which are based upon Euclid division lemma are deleted. So I think there may be our own perceptions in certain cases, but I would suggest every one of you, so please proceed for the particular next chapter, and when if the time permits, we will come back to this, or maybe then we can talk about this in future, because there may be certain issues, definitely they will remain unanswered even after this session is over. No 100% assurance can be taken by us, right? It's our own perception. So first doubt is there, I have noted it down. We will talk to CBSE authorities and get the more clarity upon it. Please proceed further. And initial few chapters, teachers must have taken or maybe completed these chapters in totality, by now. Now, chapter 2, polynomial. अब इसमें भी अगर आप ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में अगर टैली करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, तो उसमें उन्होंने एक चीज क्लियर ये डिलीट कर दी, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स. सो इट मींस जितने भी क्वेश्चंस, ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज 2.3 इज रिलेटेड. इसमें अगर आप एक्सरसाइज 2.4 में एक क्वेश्चन है, ये नहीं कि एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत बार ये होता है कि एक्सरसाइज 2.4 सर नीचे लिखा हुआ दैट इज ऑप्शनल एंड दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी आर बाउंड विद द सीबीएसई सिलेबस. सेम क्वेश्चन आप देखेंगे 2.3 एक्सरसाइज में है, एक बाई क्वाड्रेटिक
polynomials is given and two zeros are given. I think 3 upon root 5, 3 minus root 5. And same question in the exercise 2.4. 2 plus minus root 3. It means 1, 2 plus root 3, other one is 2 minus root 3. So we have to choose those questions. In our syllabus, only relationship between cubic expressions with their coefficients is not in our syllabus. So यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हमारा समझो 4 मार्कर क्वेश्चन होता था एक तरह से, जहां पर 2 zeros गिवन होते थे, वो भी इस डिवीजन के ऊपर बेस्ड है. इट मींस वो क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में नहीं आएगा. अब इसीलिए मैं इसमें एक ऑब्जर्व कर रहा था कि पॉलिनोमियल्स में ओल्ड जो हमारे को सिलेबस था उसमें 7 पीरियड्स प्लॉट किए गए थे और अब वाले में ओनली 4, ऑलमोस्ट 50%. इट मींस अब सिर्फ जीरोस पर बेस्ड कि व्हेन zeros are given to construct a polynomial and when polynomial is given to find zeros and relationship. हालांकि देखिए सिलेबस में तो उन्होंने ये भी नहीं क्लियर किया कि जीरोस गिवन हो तो फॉर्मेशन करनी है, बट क्योंकि सिलेबस में क्लियरली है कि सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम इज रिलेटेड, सो ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस, नॉट ओनली एक्सरसाइज 2.3 एंड जो भी क्वेश्चन 2.4 में भी है एक क्वेश्चन वो भी हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया. और मोर ओवर मैं इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं कि एग्जांपल 6, 7, 8, 9 एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो ऑलरेडी सिलेबस में था ही नहीं, क्योंकि वहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना था, वो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी नहीं. हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस को भी कह सकते कि वहां से डिलीट हो गया क्योंकि वो भी डिवीजन पर बेस्ड है. राहुल सर कुछ कहना चाहेंगे आप? Yeah, I agree with you. In this chapter, I agree with you because everything based on division algorithm for polynomials is not there. I fully agree. Next slide. Now, linear equations in two variable, very little deletions. और वो डिलीशन भी ऐसी है कि जो फर्दर काम आने वाली है, बट क्योंकि हमारे पास हम टाइम बाउंड है इसका, क्योंकि टाइम लेस है, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो भी लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास 3 मेथड्स हैं उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया. बट यहाँ पर भी कुछ एप्रीहेंशंस ऐसी हैं, कुछ टीचर सोचते हैं कि हमने ये चैप्टर तो ऑलरेडी करवा दिया, क्योंकि हमने देखा था कुछ क्वेरीज थी कि अगर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एग्जाम में यूज करता है तो क्या उसके मार्क्स कटेंगे. देखिए मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि हम अगर उन बच्चों को ये कहें कि इसको अवॉइड करना चाहिए, देखिए बाद में सीबीएसई की तरफ से क्या गाइडलाइंस आती है, अभी देखिए हमारे पास ये रिलेटेड सिलेबस आया और ये हायर अथॉरिटी तक बात पहुंचती है कि मोस्टली टीचर्स ने ये चैप्टर करवा दिया, तो उसमें जो भी टॉपिक्स अगर बच्चा एक अल्टरनेटिव अप्रोच की तरह भी उसको यूज करता है, वैसे भी देखिए हमारी मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि अल्टरनेटिव अप्रोच मस्ट बी अप्रिशिएटेड, बट यहाँ पर प्रॉब्लम कई बार ऐसा होती है कि पेपर टीचर्स चेक कर रहे हैं, अगर सीबीएसई की तरफ से क्लियर गाइडलाइंस होगी तो बच्चे को कहीं पर भी कोई भी नुकसान नहीं होगा. अदरवाइज उनको एक्सरसाइज 3.5 है, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 14 है, बट यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि एक्सरसाइज 3.5 में हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स को बेटा ये डिलीट कर दो 1, हम उनको कहेंगे क्रॉस से नहीं करिए, आप इसको सबसी से कर लीजिए, आप इसको इक्वेटिंग से कर लीजिए. हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन 1 कट गया, बट ऊपर से अब मेथड मेंशन नहीं आएगा, सॉल्व तो कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा. बट ये राहुल सर इस पे आप कहेंगे कि अगर स्टूडेंट इसको यूज करता है तो क्या? So what I feel is it is always advisable because we have got 3 methods by substitution, elimination by equating the coefficients, and this is the third method. When this has been deleted, I think it makes sense that the child should do it by the other 2 methods. So, but in case because if a student has done by cross multiplication method, then it all depends on the examiner who is checking, and later on what will happen. So we can tell students that do it by the other 2 methods. This is what I feel. बट सर अब ऐसे अभी मैं एक किसी के चैट बॉक्स में देख रहा था, उन्होंने कहा नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, किसी ने लिखा टीचर्स ने for cross multiplication, for using cross multiplication. एक्चुअली उनका भी यही कहना है. जब तक सीबीएसई से ये गाइडलाइंस नहीं आती, आई थिंक आई विल आल्सो सजेस्ट कि मत यूज करें, अवॉइड करिए, डोंट यूज, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर, समटाइम्स चेकर में डिडक्ट, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कंडीशन दैट कि हमारी आंसर शीट एक स्ट्रिक्ट चेकर के हाथ में जा सकती है.
तो हमें स्टूडेंट्स को इस तरह प्रिपेयर करना है कि प्लीज डू नॉट यूज, अवॉइड करो इस चीज को। अवॉइड See, I have one point to make here. See, sometime it happens कि there are teachers जो बिल्कुल अभी fresh first time वो 10th का checking करेंगे next session में. So what will happen कि उन्होंने को जब बता दिया गया है this particular sub topic is deleted, तो वो ना उन्होंने ढंग से पढ़ा होगा और ना वो उस चीज को शायद appreciate करेंगे. राइट तो इसीलिए हम सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं कि वी शुड अवॉइड टेलिंग, मतलब अपने स्टूडेंट्स को हम ये कह दें कि प्लीज जितना पॉसिबल हो सके प्लीज अवॉइड यूजिंग दिस मेथड. बट येस, जब मार्किंग स्कीम का जब डिस्कशंस रहते हैं ऑब्वियसली, तो उसमें द एक्सपर्ट कमेटी थ्रू आउट इंडिया दे सिट टुगेदर, सो लॉट मेनी माइंड्स वर्क टुगेदर, तो उनको पता होता है इसलिए जो गाइडलाइंस हैं. एंड आई एम श्योर के नेक्स्ट सेशन अब जो इस स्टूडेंट्स पेपर देंगे इनके लिए जो गाइडलाइंस है मार्किंग स्कीम के थ्रू बहुत स्पेशल्स रिलीज होंगी. आई एम सर्टेन अबाउट इट. और उसमें ये चीजें मेंशन बिल्कुल करी जाएंगी कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में तो कॉमन हमेशा से कहा गया है, स्मार्ट अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है तो उसको आपको करना है, इनोवेटिव अप्रोच हो. यस, और उसी के साथ अगर कोई डिलीटेड से भी अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो प्लीज डू नॉट डिडक्ट द मार्क्स. सो आई मीन श्योर अबाउट इट एंड विल बी एज अ टीम वी कैन राइट to CBSE so that they can come up with certain ideas, ताकि टीचर्स के बीच में या कम्युनिटी में अगर कहीं पे कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन अगर कोई आ जाता है तो उसको रेक्टिफाई करा जाए. तो ऐसे मैसेजेस बिल्कुल आप एक्सेप्ट करें. मे बी शायद आप 15 दिन में 20 दिन में कुछ और इससे रिलेटेड CBSE की तरफ से आएगा. मैं यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगा सर. एक मिनट. I would add one thing. If I would be the checker and somebody does, I find some student who has used cross multiplication method, I will give him the marks. But एज अ टीचर व्हेन आई एम टीचिंग टू माय स्टूडेंट, तो मैं ठीक करूंगा बट मुझे नहीं पता जो उसका पेपर चेक करेगा वेदर दैट पर्सन विल एक्सेप्ट दैट मेथड और नॉट. Even if a teacher know all the three methods, which is highly probable, but then ये तो दिमाग में आ सकता है ना कि some other teacher might think कि cross multiplication में मार्क्स नहीं देने, बाकी दो में देने. हाँ, yes sir, I want to add one thing. yes sir, अगर ये हमारे मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं होता और फिर कोई इसको यूज करता और टीचर के सामने आता तो वो जरूर दूसरे को दिखाता, यार ये न्यू मेथड है, इनोवेटिव, इसके मार्क्स दें. अब उनके माइंड में ये है कि ये मेथड कट गया है तो इसको मुझे मार्क्स डिडक्ट करने हैं. तो हम ऐसी सिचुएशन ना लाएं. तो स्टूडेंट्स को हमें एडवाइस करना है कि बेटा इसको अवॉइड करिए. हालांकि मोस्टली बच्चे इसको वैसे भी अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको फिर ये कहना है, बता, अगर आप उसे बताना चाहते हैं मेथड बता दीजिए, क्योंकि मोर ओवर ये 11th में 12th में काम आता है. बट अभी हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम उसको ये इसके ऊपर पूरी डिटेल में उसको एक्सप्लेन करें और उसको समझाएं. तो इसको अवॉइड ही करिए. मेथड अल्टरनेटिव है, इनोवेटिव तो हम नहीं कह सकते, अल्टरनेटिव अप्रोच है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि, लेकिन हर टीचर्स के माइंड में होगा कि ये तो सिलेबस से कट गया. तो अगर मैं कहता हूँ 10% टीचर्स भी ऐसे हैं जो इसके लिए मार्क्स डिडक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स का क्यों लॉस किया जाए. Sir, I would like to add one more thing on this cross multiplication method. It has happened many times actually. Whenever I have taught in school, I make them write x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. But I know many other teachers who belong to another section or who belong to another school also, वो इसको डायरेक्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट करते. वट दे से कि आप x अपॉन शो करो, y अपॉन शो करो, 1 अपॉन शो करो. आई हैव एनसीईआरटी इन माय हैंड्स. अगर आप पेज नंबर 58 देखेंगे तो आपको x और y का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा. तो वही बात है, जब ये चीज़ जो एनसीईआरटी में लिखी है कट गई, तो अगेन हो सकता है वो टीचर इस चीज़ को काट दे कि इट इज़ नॉट इन सिलेबस. तो अगेन वी आर नॉट सेइंग कि इसे करना गलत होगा. वी आर सेइंग कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा पेपर किसी ऐसे चेकर के हाथ में गया जो ये एक्सेप्ट ना करे. तो दैट्स व्हाई हम स्टूडेंट्स का ना नुकसान नहीं होने देंगे प्लीज. Yes, as I said, वो 10% टीचर्स के पास भी करता है, मतलब 5% भी है, तब भी लॉस है स्टूडेंट. तो अवॉइड करवाइए. नेक्स्ट आई थिंक please let's proceed further. Yeah. Yes. Quadratic. Yes. अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक के लिए थोड़ा सा डिस्कशन होगा जरूर कि बेसिकली अगर आप ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में उनको टैली करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि पुराने सिलेबस में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी आज हमारे ग्रुप में भी इस पे काफी डिस्कशन हुई है. बेसिकली इसका मतलब ही यही है कि ऑल दी वर्ड प्रॉब्लम्स. अभी कुछ टीचर्स ने लिखा था कि नहीं सर, जो पाइप के क्वेश्चंस हैं या टाइम वर्क के हैं जिसमें
वो रिड्यूस करना पड़ता है। तो आप, मैंने उसमें लिखा था, आप मुझे कोई भी एक सिचुएशन ऐसी बता दो वर्ड प्रॉब्लम की जिसमें हमें इसको रिड्यूस नहीं करना पड़ता। इवन अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 182, that is x into x plus 1, that is not a quadratic, but we have to convert it into a quadratic equations. So all the word problems, उनमें हमें करना ही पड़ता है कि जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको हमें क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/x होगा या प्लस में 1/x plus 2 होगा, उसी को हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम x into x plus 1 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज आल्सो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो और अगर आप ओल्ड और न्यू को कंपेयर करना, उसमें कहीं पर भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स के बारे में कहीं पर भी वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी मेंशन नहीं है। लास्ट ईयर में सिर्फ उन्होंने 3 टॉपिक्स में से, एक नेचर ऑफ रूट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और थर्ड इज सिचुएशनल प्रॉब्लम, दैट इज ऑल वर्ड प्रॉब्लम। सो इस बार वर्ड प्रॉब्लम टोटली डिलीट है ये। इसमें ये मत सोचिए कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम कट गई है, कुछ नहीं है, वी हैव टू चूज, नो, ऑल दी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है हमारे सिलेबस में नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आप सर और राहुल सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे? What I feel is, see, it is my personal opinion that situation problems based on equation reducible to quadratic. So what I can interpret is the normal questions are still there, like x into x plus 1 जैसे बोल रहे थे. It is just like how you interpret the change. So because it is written situational problems based on equations reducible to quadratic, like in sir अभी एक, हाँ जी ठीक है, अगर आप पुराने सिलेबस, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस को सामने रखिए, उनमें ओल्ड सिलेबस में 3 टॉपिक्स थे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड नेचर ऑफ रूट्स, थर्ड सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, राइट। और जो न्यू सिलेबस है उसमें उन्होंने सिर्फ 2 ही टॉपिक्स रखे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड अदर वन इज नेचर ऑफ रूट्स। पूरी लाइन ही डिलीट है वो। बस सिर्फ देखिए, यहाँ पर मैं कुछ कहता हूँ, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस अगर आप सभी टीचर्स ऑब्जर्व करेंगे, रिवाइज सिलेबस, ओल्ड सिलेबस और डिलीटेड पोर्शन को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट खुद कर रहे हैं। अगर हम रिवाइज और ओल्ड को सामने रखकर देखते हैं तो उनमें हमें क्लियर नजर आता है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर मैं डिलीटेड पोर्शन को पढ़ता हूँ और उसमें ये लाइन स्पेशली पढ़ता हूँ कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो माइंड में आता है कि इसका मतलब जो 360/x plus 360/x plus 5 इस टाइप की क्वेश्चंस कट गए। बट आप जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए, कोई भी, हमें हर एक में कन्वर्ट तो देखिए डेफिनेटली रिड्यूस करना पड़ता है क्वाड्रेटिक में। हाँ, लीनियर में एक डिफरेंस है, लीनियर इक्वेशंस में अगर कहीं पर 1/x plus y है और प्लस में 1/x minus y है, वहां हम रिड्यूस करते हैं लीनियर में, वो लीनियर नहीं होती। और सर इवन देखिए वहां है रिड्यूसिबल। यहाँ पर मैं नहीं समझता कि सिचुएशनल प्रॉब्लम अगर कह दिया, दोनों को कोई भी टीचर से कंपेयर करेगा ओल्ड और न्यू को रखकर, तो क्लियर हो जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। सर देयर इज अ क्वेश्चन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन व्हिच while solving we are getting 24/18 minus x minus 24/18 plus x equal to 1, and this they have finally reduced to x square plus 48x minus 324. So according to me, we can have difference of opinion. According to me, these type of questions in which initially it was constant upon linear, this motorboard question is there, it is then reduced to quadratic. So these type of मैंने इसी की बात की है कि टीचर्स यही समझ रहे हैं कि 360/x plus 360/x plus 5 अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो डाउनस्ट्रीम का आप ले रहे हो या कोई वर्क टाइम का ले रहे हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं। बट सर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको, पर अगर हम ओल्ड सिलेबस और आप न्यू सिलेबस में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी वो मेंशन ही नहीं है, कि कहीं पर या तो वहां लिखते कि एक्सेप्ट रिड्यूसिबल टू, सिचुएशनल एज इट इज वर्ड लाने देते और उसमें फिर ये लिखते कि एक्सेप्ट which those situations in which we have to reduce, but उन्होंने इसको clearly cut delete कर दिया। तो I have make the note of this, so I think we can proceed further, क्योंकि इसका जो भी है quadratic में of course there will be a certain apprehensions by each and every one of us. We'll talk about this later, or maybe जब थोड़ी और guidelines आएंगी after our submission to CBSE, they will definitely come up with some clarification on it. So let's proceed for the next chapter. It will be clarified. सर चैप्टर 5 एपी, अब इसमें भी जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें क्लियर लिखा हुआ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एंटम्स, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है सर। अगर आप ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में चेक करेंगे
तो न्यू ओल्ड सिलेबस में उन्होंने एप्लीकेशंस लिखा डायरेक्ट, और अब जो न्यू सिलेबस है उसमें कहीं पर भी एप्लीकेशंस का नाम नहीं, लेकिन डिलीटेड में उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एंटम्स। तो अभी हम अगर डिलीटेड पीडीएफ को अगर कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इन सम पर बेस्ड है, वो हमें नहीं करवाने, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन सम ऑफ एंटम्स। तो दो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, 5 एग्जांपल 9 एंड 10, वो वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन वो nth टर्म पर बेस्ड है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। Sir, राहुल सर, I also feel the same. Application problems from arithmetic progression based on sum of n terms is deleted, and the other problems we have to, the children should be made. बट सर एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा। मैं टीचर्स के साथ ये सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ बहुत सारे हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो ये सोच लेते हैं कि एक्सरसाइज 5.4 जहां जहां भी ऑप्शनल लिखा होता है और कहते हैं स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि नीचे बेटे स्टार में देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर, बट उसमें वी हैव टू चूज दोज क्वेश्चंस व्हिच आर इन आवर सीबीएसई सिलेबस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5.4 का जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, और आई थिंक दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज नॉट इन आवर सिलेबस। अब तो वैसे भी सिलेबस से कट गया क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन है वो सम ऑफ एंटम्स। Yes, you can see easily first and second questions totally sum पर based है और SN पर based है और AN पर based है, कोई word problem नहीं है। Should I move to triangles, sir? जी सर प्लीज। यहाँ पर भी सेम कंफ्यूजन। ट्राइंगल्स के ओल्ड सिलेबस में टोटल हमें 9 थ्योरम्स लिख कर दी हुई थी। उन 9 थ्योरम्स में 4 थ्योरम्स के आगे लिखा था प्रूव और रिमेनिंग 5 के आगे लिखा था मोटिवेट। मोटिवेट में इट मींस वी हैव टू यूज दीज स्टेटमेंट्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी अगर हमारे पास उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, हम प्रूफ नहीं पूछेंगे उनका जहां पर मोटिवेट लिखा होता था। बाकी 4 थ्योरम्स हम पर सबको क्लियर है कि 4 थ्योरम्स हमारे सिलेबस में थी, रेशियो ऑफ एरियाज और पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एंड बीपीटी। बट जो अब न्यू सिलेबस है उसमें उन्होंने 2 थ्योरम्स टोटली डिलीट कर दिए। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर सेम चीज आती है कि जहां पर उन्होंने या तो अगर इसका सिर्फ प्रूफ डिलीट करना होता तो उसके बाद उसी न्यू सिलेबस में उसके प्रूफ टू जहां प्रूफ लिखा उसकी जगह लिखते मोटिवेट। इट मींस अगर हम स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट भी नहीं कर रहे, इट मींस हम उनको ये स्टेटमेंट भी नहीं बता रहे हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम उस एक्सरसाइज को जो एरिया पर बेस्ड है वो कैसे बताएंगे? या तो सीबीएसई को उन अगर इन 2 थ्योरम्स के सिर्फ प्रूफ को डिलीट करना था तो न्यू सिलेबस में उनके साथ उनको क्या करना चाहिए था कि साथ में लिखते मोटिवेट। जैसे पहले की 5 थ्योरम्स के आगे मोटिवेट लिखा होता था, उनके प्रूफ नहीं पूछे जाते थे, 4 के प्रूफ पूछे जाते थे। लेकिन अब न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या किया कि 9 की जगह 7 लिख दी, 2 की स्टेटमेंट ही नहीं दी उसमें कहीं पर, 5 के साथ मोटिवेट है, 2 के साथ प्रूव है। इट मींस प्रूफ जो है वो डिलीट हुआ। अब यहां पर मैं कुछ पढ़ रहा हूं, चैट्स में आ रहे हैं कि ओनली प्रूफ, तो अगर उन्होंने ओनली प्रूफ डिलीट करने होते तो वो मोटिवेट वर्ड जरूर लिखते। तो अब यहां पर फिर वही सेम चीज है कि पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हम फिलहाल यही सोचेंगे कि थ्योरम फिलहाल कट गई है, आप एक्सरसाइज करवाइए। लेकिन ये भी मैं श्योर हूं कि अगर एक्सरसाइज करवानी होती तो उसके आगे वो मोटिवेट लिख कर देते, क्योंकि अगर कोई भी टीचर ओल्ड और न्यू को कंपेयर करेगा तो ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि अगर उन्होंने इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देनी होती तो मोटिवेट नहीं हटाते, वो उसको चेंज करके प्रूफ की जगह मोटिवेट करते कि ओनली प्रूफ ऑफ 2 थ्योरम्स कैन बी आस्क्ड, और अदरवाइज बाकी 7 जो स्टेटमेंट्स हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अगर उन क्वेश्चंस को भी हटाते हैं तो फिर हमें उस पर बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइज है, कन्वर्स के तो पाइथागोरस के तो मैं देख रहा था ओनली 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है और एक लेकिन एरिया के ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज। हाँ जी राहुल सर आप बोलिए। Sir, I agree with you. But what if I have to teach? I'll not teach the theorems, not the proofs of these theorems, and other maybe questions based on it probably should be done. यहाँ पर भी क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है कि अदरवाइज उनको न्यू सिलेबस में उन्हीं स्टेटमेंट्स को देकर प्रूफ को हटाकर उसकी जगह लिखना चाहिए था मोटिवेट। तो फिर मे बी कई बार सर पंकज सर मैं मानता हूँ कि अगर ये टाइपिंग एरर इन केस अगर हम इसको ट्रीट करें तो वो सीबीएसई से हमें फिर एक क्लैरिटी इसकी चाहिए कि सो दिस इज द थर्ड पॉइंट व्हिच इज आई थिंक रेज्ड एंड
इट्स अ कंसर्न बाय लॉट मेनी टीचर्स जो यहाँ मैं चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ. सो आई मीन वही है कि वो थर्ड पॉइंट आ गया है, ये हम आगे फर्दर पूरी आगे भेजेंगे Yes, सो दैट हमें बिल्कुल कुछ आंसर बिल्कुल क्लैरिटी हो. कुछ एक डाउट है, डेफिनेटली विल गेट द आंसर. एक अभी एक पूछा जा रहा क्वेरी है है. हाँ, एक्सरसाइज 6.6 के बारे में थोड़ा बताएंगे, यस कौन सी यस एक्सरसाइज है? यस सर, यस सर. एक्सरसाइज 6.6 के बारे में बताता हूँ आपको कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 and 9 दैट इज बेस्ड अपॉन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज, जिसका कहीं पर भी हमारी बुक में कहीं जिक्र नहीं है. तो आप क्वेश्चन 1 and 9 और एक 10th है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, आप उसको हटाकर बाकी क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस बेस्ड है डायरेक्ट. उसमें कोई भी कन्वर्स पर बेस्ड नहीं है, कोई एरिया पर बेस्ड नहीं है. आप उन क्वेश्चंस को करवाइए बिल्कुल डेफिनेटली. 1, 9 वो हमारे सिलेबस में नहीं है और 10th को आप हटवा सकते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है. उस पर सिमिलर ट्रायंगल्स में वर्ड प्रॉब्लम हमारे नहीं पूछी जाती. कुछ एक्स्ट्रा में एनरिचमेंट अच्छे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो आप दे सकते हो. अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चंस है सेकंड ऑनवर्ड्स वो सारे टोटली बिल्कुल सिंपल है. आप एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करवाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट करके भी किया जा सकता है क्योंकि टोटली उनका कॉन्सेप्ट वही है जो हमारे सिलेबस में है. सिर्फ हाँ यस सर, जो फर्स्ट एंड लास्ट 9 क्वेश्चंस है वो हमारी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर बेस्ड है, तो आप उसको हटवा सकते हैं. In this case, sir, I would like to add for optional exercise only कि what I think, मतलब it's my opinion कि please teach optional exercise only if the student is very good in mathematics, क्योंकि इनका level बाकी exercise से काफ़ी questions का थोड़ा सा ऊपर आ जाता है. But for example, like in AP, there are 3-4 questions जो हम optional के ले सकते हैं, जैसे which term is first negative term. फर्स्ट Okay, सेकंड बट ट्राइंगल्स में कुछ क्वेश्चंस अगर बच्चा एवरेज है तो आई थिंक दैट पर्सन शुड स्किप, दैट स्टूडेंट शुड स्किप ऑप्शनल. बट स्टिल राहुल सर आई थिंक विल डिफाइन इट मच बेटर देन अस. सर मैं उसमें भी आपको बताऊंगा. जैसे 7th क्वेश्चन है बहुत इजी है, ओनली 2 लाइनर्स है, तो उसमें अगर आप उसको 3rd 4th क्वेश्चंस भी आप करवाएंगे और जो मोर ओवर जो सेकंड क्वेश्चंस है वो हमारी इसी एक्सरसाइज का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 टोटली सेम क्वेश्चंस है, बट वो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया जो क्वेश्चन 2 है. और 3rd 4th कोई मुश्किल नहीं है, 2 ट्रायंगल्स से लेकर. देखिए हम मेरा पर्पस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने ये फील किया कि जब मेरे पास बहुत सारे अलग डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी हैं तो वो ये मुझे बताते हैं कि हमारे टीचर ने ये कहा कि ये नीचे बेटो क्या लिखा हुआ है, स्टार में लगा हुआ. सो वहां पर कहीं पर ये नहीं लिखा होगा सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दिस इज एनसीईआरटी बुक. मे बी रेफर कोई दूसरा बोर्ड भी उसको करता हो, ये नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई इसको रेफर करती है एनसीईआरटी को, बिकॉज ये दोनों जो मैं समझता हूँ कि दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सिर्फ सीबीएसई अपनी बुक्स नहीं प्रिंट करती तो वो एनसीईआरटी को रेफर किया है कि एनसीईआरटी की बुक्स हमने लगानी, लेकिन हमारा सिलेबस सीबीएसई का है. तो हम अगर सीबीएसई के सिलेबस को देखेंगे तो 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन ये हमारे सिलेबस में है. इनको आप होट्स की तरह ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चंस बहुत इजी भी हैं. हम एक्स्ट्रा भी असाइनमेंट्स कराते हैं, एज ए असाइनमेंट्स आप करवा सकते हो. ठीक है, अच्छे बच्चे उसको समझेंगे. अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल सर कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वही समझते हैं, अदरवाइज तो ट्रायंगल्स का चैप्टर तो एक्सरसाइजेज में बच्चे नहीं कर पाते हैं. एक क्वेश्चन बीच में पूछा गया है, क्लैरिफाई अबाउट बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड हाउ टू टीच दो स्टूडेंट्स. क्या इसका आंसर हम कर पाएंगे? सर वो तो अब वही है ना, कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग साइड टीचर्स की अपने ऊपर है कि किस. आई थिंक सर इसके लिए वी शुड वेट अभी सी, क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड, तो इसके लिए आई थिंक वी शुड वेट. पता नहीं 2 एग्जाम्स होते हैं या 1 होता है, क्योंकि इस बार सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है, तो आई थिंक वी शुड वेट. Sir, but for basic and standard, I think we have the same curriculum. Yes, someone said optional is for standard. Someone is said optional is for standard. Yes, definitely उनमें लेवल थोड़ा हाई है तो स्टैंडर्ड के लिए हो सकता है, बट उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको कहा 7th क्वेश्चन वो बेसिक के लिए भी इजी है. एंगल इन सेम सेगमेंट से सिमिलरिटी होती है, 2 स्टेप में हो जाता है, तो डिपेंड करता है, तो आपको चूज करने पड़ेंगे. यू आर ए टीचर, आप सिलेक्ट करिए कि कौन से इजी लेवल के हैं तो बेसिक वाले को करवा दिए जाए और बाकी स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रहे हैं उनको दे दिए जाए. बट आई वुड लाइक टू मेक अ जनरल स्टेटमेंट हेयर. ये पक्की बात है क्योंकि सिचुएशन और ये वन टाइम और शायद कभी लाइफ में दोबारा किसी को ना देखने को मिले और ना ही मिले, होना भी नहीं चाहिए. तो वन टाइम के लिए अगर मेजर होता ना तो सीबीएसई विल आल्सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. और पेपर सेटर जो होंगे दे विल बी
गाइडेड एंड इंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे कि भाई कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से सीबीएसई को एक बैकफुट लेना पड़े या कहीं इश्यूज आ जाएं। इसीलिए एक्सपेक्ट जो मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक परसेप्शन एंड माय एक्सपीरियंस कि पेपर बहुत डायरेक्ट टाइप का एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। बेसिक के लिए तो नेचुरली रहने वाला है, बट इवन फॉर द स्टैंडर्ड ऑल्सो नॉट दैट लेवल जो हम जनरली एक्सपेक्ट करते रहे हैं। तो पेपर इस तरह का डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए नेचुरली, उस केस में इट्स विल बी अ बिग चैलेंज फॉर अ पेपर सेटर टू प्रिपेयर सच पेपर, जैसा मैं अगर विजुअलाइज कर रहा हूं। तो इनफैक्ट जैसे हमारी कल मीटिंग हुई थी 11th एंड 12th की, आई इवन रिक्वेस्टेड एंड सजेस्टेड ऑल द टीचर्स हु आर टीचिंग एंड हैविंग लॉट मच ऑफ एक्सपीरियंस, लेट देम प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस जो उनको सिलेबस से क्लियर हो रहा है। देन वी कैन पूल, we can exchange our question papers और फिर we can come up with a very good idea about it, और वो चीजें हम आगे डिस्कस फर्दर कर सकते हैं। Yes sir, over to you. Next slide sir. जी सर आगे करिए। Now chapter 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें भी क्लियर है कि हमारे जो ओल्ड सिलेबस में 3 टॉपिक्स थे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो इस बार उन्होंने बड़ा क्लियरली एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रिड्यूस डिलीट कर दिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट होने से एक्सरसाइज 7.3 डिलीट हो गई। अब हम इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। अब एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उन्होंने, अब हम स्टूडेंट्स को ये नहीं कह सकते कि पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दो, आप उसको, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम उसको सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल 11 to 15 रिलेटेड है क्योंकि एरिया पर बेस्ड है, बट क्वेश्चन नंबर 15 अगेन उसमें तेरा 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन एंड 1 कोऑर्डिनेट जो है वो मिसिंग है, उसको भी हम कैसे ले सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से, या मोर ओवर डिस्टेंस फॉर्मूले से भी ले सकते हैं कि अगर हम उसमें ये साथ में ऐड ऑन कर दें कि एक फिगर बना दें ए बी सी डी, उनका जो ऑर्डर भी सीक्वेंस भी दे दी जाए, तब भी स्टूडेंट उसको डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड उसको ले सकता है। इट मींस जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 का फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। 7.4 एक्सरसाइज में अगेन ऑप्शनल है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी लूँ यहाँ पर कुछ ये बताने की, क्योंकि मैं हमेशा से फेस करता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे जब ये कहते हैं कि सर ये एक्सरसाइज तो हमारे सिलेबस में नहीं, अपनी मैम ने कहा। अब उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों हमारे सिलेबस में है, और उसमें कहीं पर भी अब फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशंस x एंड y इफ दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं अब सिंपल सी बात है, बच्चों को एरिया ऑफ ट्रायंगल से इजी लगता था, उससे कंडीशंस फाइंड आउट करते थे, बट ये सेक्शन फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, या हम इन पॉइंट्स को लिख दें साथ में a b c वेयर b लाइज इन बिटवीन a c, तो इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है कि ऐसा नहीं कह सकते स्टूडेंट्स को हम कि ये, लेकिन टोटली जो एरिया पर बेस्ड होंगे वो सारे क्वेश्चंस हमारे डिलीट हो गए कि जहां पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पूछना है वो नहीं। राहुल सर कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, but sir, what you mentioned in exercise 7.3, which fourth question? 7.3 sir, fourth question I think. Fourth is find the area of the quadrilateral. नहीं sorry, 7.8 क्वेश्चन है सर, मैं 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है सर। क्वेश्चन नंबर सर फोर्थ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2। यस, I would like to say one thing like how to use section formula. Like there is second part 8.1 k minus 4 and 2 comma minus 5. These 3 points are collinear. So let it be in sequence. हम इनको ABC इसी sequence में लेके चलते हैं. right. So by using using section formula and using this value of y, yes, we can find this ratio. And using this ratio we can find the value of x. Value of k. This is the worst condition कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो इतना टफ बच्चा क्या सोच पाएगा, बट ये हम मतलब उसके लिए लेके चल रहे हैं कि बाय चांस स्टैंडर्ड के बच्चों को, वही चीज स्टैंडर्ड के बच्चों को प्रिपेयर करना। और मोरओवर एक क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 में 10th क्वेश्चन, उसमें उन्होंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ ऑल द 4 वर्टिसेस आर गिवन। अब इसको हम स्टूडेंट्स ये नहीं सोच सकता कि ये तो कट गया, क्योंकि वहां पर रोम्बस का है तो वहां पर वो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही उसको कर सकता है कि हाफ d1 × d2 मेंसुरेशंस यूज करके, और उन्होंने इसीलिए वो एक्सरसाइज 7.2 में ही एनसीईआरटी में मेंशन है। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था तब उसके पास एक ऑप्शन थी कि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके भी कर सकता है, लेकिन अब उसके पास वो ऑप्शन समझ लो खत्म हो गई। अब उसको इसको कैसे करना पड़ेगा, हाफ d1 × d2, हालांकि हिंट भी उसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस का,
अदरवाइज अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस में होता तो हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि बेटे आप इसका एक ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके उसको ट्वाइस करके भी कर सकते हो, बट अब उसको हाफ d1 into d2 से ही करना पड़ेगा। राहुल सर? I agree. Area of triangle, area of quadrilateral, that is also just finding out triangle, two triangles. That is not to be done. राइट। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बड़ा क्लियर सा है एक कि जो डिलीट हुआ सिलेबस, मोटिवेट द रेशियोज व्हिच आर डिफाइंड एट डिग्री 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि हमारे चैप्टर 8 में उन्होंने एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड का जैसे थर्ड पार्ट है, अब वो एक स्पेसिफिक हो गया क्वेश्चंस कि जहां पर भी 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा तो हमें नहीं कराना। लेकिन होता क्या है कि हम स्टूडेंट्स को टेबल भी सिखाते हैं। अगर आज हम उनको ये कहने लग जाना बेटे अब 0-90 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें 30, 45, 60 वाली टेबल बनानी है, तो वो और कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जैसे सभी टीचर समझाते होंगे, मैं भी समझाता हूँ, बेटे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो, उसके अपॉन में 4 लिखो, ऊपर रूट लगा लो, तो आपके पास वो वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन अगर हम उस पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कुछ टीचर्स ने भी ये चीज करवा दी हो, ट्रिग्नोमेट्री भी मैं करवा चुका हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उन बच्चों को आज ही समझाना शुरू कर दूं बेटे अब 0-90 कट गया तो अब आपका सिर्फ 30, 45, 60 है, तो अब टेबल ऐसे बनानी है, तो वो एक टेबल का फॉर्मेट है, तो 0-90 की वैल्यूज अगर उन्हें आती है तो ठीक है, बोर्ड में नहीं आएगी बस। और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये इसके लिए तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये नुकसान ही हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला बहुत इजी था, अब उनके लिए ये चीज कट गई है, तो कहीं ना कहीं है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने 0-90 पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं। एक्सरसाइज 8.2 में सेकंड का थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्विंग है साइन 0 डिग्री इक्वल टू में 0। एक फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, वहां लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू में 0, क्योंकि जब हम उसको 0 और 90 की वैल्यूज के बारे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस बता ही नहीं रहे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अब इसमें एक और स्टूडेंट्स को हम कभी वैसे तो देखिए पता नहीं टीचर्स एक्सप्लेन करते ही होंगे, मैं तो ये मानता हूँ कि साइन 30 हाफ क्यों होता है, कि साइन 10 45 1 क्यों होता है, ये नहीं कि सिर्फ हम टेबल एक्सप्लेन कर देते हैं, वो तो एक एड टू रिमेंबर है कि उनको याद करने का तरीका है। लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर करता हूँ कि बेटे साइन 30 हाफ है तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन 30 डिग्री हाफ। सो डेफिनेटली अगर हम उनको ये चीज एक्सप्लेन करते हैं तो बेटर रहता है। उसमें पेज 183 पर एक फिगर है 8.17, उन्होंने टी रेशियोज समझा रखे हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। एक्सरसाइज 8.3 टोटली नहीं है हमारे सिलेबस में क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेटली वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड है, तो वो भी नहीं आएगा। एग्जांपल 9, 10 एंड 11, एग्जांपल ज्योमेट्रिकल प्रूफ तो ऑलरेडी नहीं थे, ज्योमेट्रिकली प्रूफ तो लास्ट ईयर ही कट गए थे। किसी टीचर ने चैट बॉक्स में आया, तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, these are not already in syllabus. What about trigonometric identities? Identity They are there. as it is, as it is. They are there, yes. And moreover, I just want to add this, that teachers are, they can, like even for complementary angles, we can give them some idea. And generally, as far as I know, कि जो proofs हैं about 0 degree, 30 degrees, 45, 60 and 90, those proofs, I don't think many teachers used to derive those results. But even if you want to, you can, if you have time, you can share it with the children. उसमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे लगता है कि this is what, कि इसमें से assessment के लिए नहीं आएगा। So if that is some part में हम बच्चों को ये बोलते हैं कि इसमें से assessment नहीं आएगा, so that load can be reduced. अब complementary भी है, in a single triangle you find sin theta from this side, उधर 90 minus theta लेकर you find the t ratios. Yes, it will hardly take 5-10 minutes. So you can obviously share your ideas and you can explain to them. So अगर इंटरनल में आप अपनी एक्टिविटी के अंदर भी मैं मानता हूँ आप करवा सकते हैं, एक्टिविटी फाइल में जो आपका है वर्क, that can be included in that way. in the activities. Very nice idea, Bajaj sir. बहुत बढ़िया. In activity we can cover complementary angles. Yes. And it will be no doubt highly useful in 11th class also. Somebody was asking कि it is highly required in next class. Obviously फिर इसे हम practicals में cover करते हैं. Yes. And that gap will also be plugged then. So yes, there is no Definitely सर, यही एक चीज है कि टीचर्स को अपने आप भी डिसाइड करना है कि कहाँ पर वो गैप हो रहा है, उस गैप को फिल करना। हालांकि टीचर्स ये सदियों से करते आ रहे हैं कि जहां पर भी उनको लगता है कि ये गैप मुझे फिल करना है तो फिल करता है, लेकिन अब उनके ऊपर बर्डन थोड़ा सा और ज्यादा आ गया
कि ये नहीं देखना कि ये तो सिलेबस से कट गया तो ये मुझे नहीं करवाना। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर गैप क्रिएट हो रहा है तो उस गैप को फिल टीचर का काम है कि उस गैप को फिल वो करेगा। And sir, these are very special circumstances. And see, whenever out of the curriculum which we have been teaching for so many years, whatever part is taken out, it will have some effect. And the other contents which are related to that, for that, if it is needed, those things can be taught. Because maybe there is like, अब देखिए application की जो problems हैं, they are still intact. Trigonometric identities, without trigonometric identities, so trigonometry I think would be meaningless. तो the only thing is कि ये जो angles हैं इनको motivate करके you can share it with the students and Activity से कर सकते हैं। हाँ, and complementary angles we can teach them in activities, we can explain to them and that Moreover, can be geometrical proof भी कर सकते हैं। जो geometrical proof है वो भी activities में करवाइए। 60 yeah, degree, of 30 course, degree, of course, yeah, that हाँ। can be done. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कट गया उसको भी आप एक्टिविटीज में ले सकते हैं और करवा सकते हैं। जो बेसिकली जितने टॉपिक्स अगर डिलीट हुए तो आप उनको एक्टिविटीज में भी करवा सकते हैं कि स्टूडेंट्स उसके टच में रहेगा, उसको कनेक्ट कर पाएगा अगले टॉपिक्स में। ठीक है सर। सर थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा हमें क्योंकि टाइम। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली सर। या प्लीज। चलिए इसमें तो सर आई वुड ऐड वन थिंग कि दिस इज अ परफेक्ट थिंग, नथिंग हैज बीन डिलीटेड, सो नो टेंशन विद एनीबॉडी। Though there is a question number 16, which is based on complementary angles, so you can go through the question। इस बहाने बच्चों को ना complementary angles के बारे में basic idea पता लगेगा कि that sin 90 minus theta is cos theta। Else we can skip question number 16 of phase 205। Yeah, but that sure वो बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि complementary yes, angle involved हैं तो नहीं आएगा। Yes, definitely sir। phase 205 पर question 16। Same is with circles, nothing has been deleted, so there is no query। I think there must be no query about this। We have to complete all the questions with all the examples and theorems जो already है। दो ही theorems। Then it is construction 11.1 पूरी कट गई है। इसमें question number 1 I would suggest कि आप लोग जरूर करवाएं। There is we have to draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8। So it needs it can be drawn without using similarity concept, similar triangles concept। तो इसे हम जरूर बोलेंगे कि एक जरूर कवर करें। and remaining question number 2 to question number 7 of first exercise and example 1 2 they need not to be teach। I think Rahul sir, will you agree with it? Sir, which exercise? 11.1 I was saying कि question number 1 only। Yeah, one is the direct question on just dividing the given line in a given ratio, that is there, so that we have to teach, and Yes. Only in case of construction of similar triangles is not to be done. Similarly, Yes, in area related to circle only 120 degree angle area of segment या निकालते थे। and obviously students will feel comfortable क्योंकि 120 में थोड़ा calculation ज़्यादा हो जाती है। तो only one question is there and one example there is there। example 3 example 7 and example 3। yes। so बस दो questions हमारे कटे हैं। one more। कोई हमारा ज़्यादा टेंशन नहीं है। And so in surface areas and volume everything is intact, so only frustum of a cone is not there, all other solids like you take combination of I think combination questions are there, so combination of cone with cylinder, capsule like cylinder with 2 hemispherical ends and all those, everything is there, just frustum is not there, and I think it will be beneficial to students so that they have at least frustum thoda abstract bhi hota hai and the formulas are also slightly difficult, so that particular part they can always learn later on. And sir, I would like to say one thing, Pankaj sir and Rahul sir, in the end chapter it is very clear direct exercise has been deleted, so I think इस part में queries या confusion है confusion। सर मैं आपको बताता हूँ, आज जैसा आपने कहा कि किसी स्कूल में ये फर्स्ट टर्म का चैप्टर हो गया, तो मेरे से आज ही स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप एग्जाम्पल 12 देखिए, इसका एग्जाम्पल 12 फर्स्ट टर्म के टॉपिक के बाद है, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं पर भी वो एक्सटेंड करके देखिए जैसे एक्सप्लेन किया गया, उसमें उन्होंने कौन के फॉर्मूले यूज किए होंगे। तो स्टूडेंट पूछता है कि क्या सर ऐसा क्वेश्चन, तो फर्स्ट टर्म के अगर फॉर्मूले कट गया, फर्स्ट टर्म कट गया, तो ये इसमें तो कहीं पर भी फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला यूज नहीं किया गया। नहीं सर, आई डोंट डेफिनेटली मैंने उसको यही कहा, बेटे जहां पर भी फर्स्ट टर्म नाम आएगा समझ लो फर्स्ट टर्म पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, ना वॉल्यूम ना सरफेस एरिया कुछ भी नहीं आएगा।
तो ये टोटली डिलीटेड है। 13.4 एग्जाम्पल 12 एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस कोई भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर भी मैं सर एक एक्सरसाइज 13.5 की बात करूंगा, फिर वही ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसमें आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 2 था हमारा डबल कोन का, ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में नहीं है। और अगर बहुत सारे टीचर्स जानते होंगे कि ये कभी हमारे टाइम कुछ आज से 15 साल पहले ये हमारे क्वेश्चन आता था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था ये, लेकिन अब वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, इसमें मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, उसमें फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है वो नहीं आएगा। डेरिवेशंस फॉर्मूले की हमारे सिलेबस में नहीं होती है, तो 5th 6th 7th इज नॉट इन आवर सिलेबस, 2nd इज नॉट आवर सिलेबस। अगेन क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 वही चीज है जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिनका कैलिबर है, जो आईक्यू जिनकी बेस्ट अच्छी है, आप उनको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरह करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्लास में करवाइए, वो थोड़े से हॉर्स कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर उनको 1st, 3rd एंड 4th क्वेश्चन से वो करवाइए। अच्छा, 5th, 6th, 7th सिलेबस में। some teacher had a query. went through the chat box कि sir student was insurance that optional exercise का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इन दैट केस अगर ऐसा स्टूडेंट एश्योरेंस मांगता है तो सर ऑब्वियसली वी कांट एश्योर, बस हम उसे उनको उन क्वेश्चंस को करा देंगे, देन लेट दैट स्टूडेंट डिसाइड वेदर शी और ही हैज टू रिवाइज इट और लीव इट। ठीक है सर? बिल्कुल राइट सर। सर ये तो सबसे इजी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में तो ओनली थिंग रेदर देन बीइंग वेरी क्वेश्चन स्पेसिफिक, हम तो बच्चों को या टीचर्स को भी यही सजेस्ट करेंगे कि फर्स्ट टर्म के कोई क्वेश्चंस नहीं करने, अदर एवरीथिंग एल्स इज। बेसिकली उन्होंने सर ऑलरेडी 12 चैप्टर्स इसके लिए डिसाइडेड थे पुराने में, अब 8 यानी कि 33% हटा दिया। इसका मतलब वो समझते हैं कि मेनली 10th का स्टूडेंट्स जब करता है न्यू, वो 9th तक सब कुछ पढ़ के आता है, तो उसको मैक्सिमम टाइम कहाँ देना पड़ता है, फर्स्ट टर्म में, तो वो उन्होंने इस बार वो डिलीट कर दिया। तो बच्चों के लिए समझो एक अच्छी सी बात है कि जो 9th में किया वही दोबारा बस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स लेना है, कन्वर्जन करना है, तो सेम चीज है, उनको न्यू फॉर्मूले कोई लर्न नहीं करना। So, but the difficulty level, like sometimes for rate of change है कि from the canal water is flowing in, yes, तो उसका तो level थोड़ा level है। yeah. बिल्कुल definitely। In statistics, there is direct step deviation method has been deleted. So we will be going through assume mean method. It was a very nice query कि what was the use of deleting step deviation अगर assume mean है। Even I will agree with that person कि आपने स्टेप डिवीजन हटा दिया तो एज्यूम मीन भी क्यों नहीं हटाया। ठीक है सर, सीबीएसई के रूल्स हैं, वी विल फॉलो इट बाय हार्ट, बाय कोर ऑफ आवर हार्ट। एंड सेकंड सीएफ कर्व हटा दिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ओजाइव्स है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज जरूर है कि सीएफ ग्राफ में बहुत सारे बच्चे ना गलती करते थे। ये मेरा भी 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये ग्राफ कई बार बच्चों ने सीखे। स्टेप डिवीजन मेथड सम पीपल में फील कि अनकंफर्टेबल। यहाँ पर भी एक हमारा पॉइंट बनता है हमें सर, इसको भी नोट कीजिएगा। रीजन है कि जितने भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम स्टेप डिवीजन यूज नहीं करते हैं तो वहां पर लीनियर इक्वेशंस दो बनती हैं, जहां पर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत लेंथी हो जाता है, वो कम से कम 7 to 8 मिनट्स लेता है, और अदरवाइज 3 to 3 मिनट्स में क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है। तो स्टेप डिवीजन मेथड इज द बेस्ट मेथड। अब कि इसको हम फिर वही चीज अल्टरनेटिव अप्रोच में इसको कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, और मुझे लगता है जरूर करना चाहिए कि अगर हम कुछ भी एज्यूम मीन और स्टेप डिवीजन में देयर इज नॉट सो मच डिफरेंस, बट फिर भी अब उन्होंने वही बात आती है कि हमने जो बिगनिंग में डिस्कस किया कि वहाँ टीचर्स देखेंगे स्टेप डिवीजन यूज किया, कट कर दो। तो ये गाइडलाइंस सीबीएसई की तरफ से बहुत आना जरूरी है कि कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स जो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी थी, अगर वो किसी को आती है तो उसको क्या अल्टरनेटिव अप्रोच की तरह यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये सिलेबस में नहीं होती और कोई करता तो फिर तो 100% उसको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमें क्लियर लिखा हुआ है अल्टरनेटिव मेथड जो अप्रिशिएट करना है। लेकिन अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में था और उसके बाद कट गए हैं, तो यहाँ अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो टीचर्स देखेगा, अब वही चीजें हर टीचर्स के बारे में नहीं कह सकते कि वो ये देखेगा ये तो सिलेबस से कट गया, क्यों यूज किया, मार्क्स प्रेडिक्ट। तो ये हमारी एक क्वेरी, हमारा पॉइंट होता है सर। वही पंकज सर, अभी हम छोड़ के चलेंगे, लेट अस राइट, अगर नई गाइडलाइंस हो सकता है गाइडलाइंस आती है तो हम we can wait for the guidelines till हाँ जी। And last chapter again there is no tension, it has to be covered completely probability. तो ये तो बच्चों का प्लस पॉइंट ही रहता है। जनरली अगर वो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत फेस करते हैं तो वो कार्ड्स में फेस करते हैं, एल्स प्रोबेबिलिटी में काफी बच्चे खुश होते हैं।
करने से। बिल्कुल। सो दिस वाज ऑल अबाउट 10th क्लास। अब एक बार 9th का भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग स्पीडली। राइट। तो दिस इज बेसिकली मैं रिड्यूस सर कोर्स 9th को स्टार्ट करने से मैं पहले एक चीज कहूंगा सर। बेसिकली क्या है, 9th जो है स्पेसिफिक टू टीचर्स होता है। टीचर स्पेसिफिक है कि वो उसमें हम कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो ऑलरेडी वो जो करवाएगा, क्योंकि स्कूल बेस्ड होता है, हर जगह सेंट्रलाइज पेपर नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ हम सीबीएसई के डिलीशन की बात तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम ये क्वेश्चंस नंबर और ये कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 9th क्लास में जो कटा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, बट इसमें हम ये बिल्कुल भी हम ये नहीं कर सकते। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यस सर। जैसे नंबर सिस्टम है, इसमें मेजर पार्ट जो कटा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन नंबर लाइन जो है, ये ऑलरेडी पहले भी कट चुका था। कट चुके था। देयर आर फ्यू स्कूल्स जहां वो कराते हैं। यस ओके, बट अगर आप छुड़वाते हैं तो स्टूडेंट्स विल फील मच कंफर्टेबल। इस साल मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जो कभी कुछ करवाते थे इस बार छोड़िए, क्योंकि वो बेचारे उन नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी इतनी नहीं आ सकती जितनी फिजिकली आती है, तो इट्स बेटर अगर आप इस पार्ट को नहीं कराएं तो। सिमिलरली इन पॉलिनोमियल्स ये फॉर्मूला डायरेक्ट हटता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये वो फॉर्मूला है जिसके एप्लीकेशंस में बच्चे दिक्कत करते हैं। एक तो इसका वेरिफिकेशन है क्वेश्चन, दूसरा एक है जैसे लाइक व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 3xyz। 2 लाइन का क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट पूछते हैं। अब सर इसमें मैं ऐड करूंगा, इसी क्वेश्चंस को स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड ऑन क्यूबिंग टू बोथ साइड, तब वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम आता है आंसर। अगर इस आइडेंटिटी को यूज नहीं करते, वो अल्टरनेटिव अप्रोच है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस बेस्ड नहीं आएंगे और ना ही पूछने। तो इस फॉर्मूले को हम छोड़ेंगे। अच्छा, देयर वाज कंफ्यूजन अबाउट फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ। उनके प्रूफ नहीं करने, उनके एप्लीकेशंस जरूर कराएंगे हम। लाइक इफ x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो ये फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है। इसका प्रूफ बहुत रेयर टीचर्स होते हैं जो करवाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हमें करानी है जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में गिवन है, प्रूफ हमने नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल चैप्टर है, पूरा करना है, इट्स ओके। इस चैप्टर देयर वाज कंफ्यूजन कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हैज डिलीटेड। इसमें मैं पंकज सर, राहुल सर, आप लोगों से बस एक ही चीज जो मेरे मन में आया था, हाँ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन इसमें आता है, द वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। बट आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को भी हम काटेंगे। तो आई थिंक वही कह रहा हूं, इसमें सब कुछ है, कुछ भी नहीं लेकर चले। आई थिंक सो। राहुल सर, आपको सर इसमें जो एग्री विद यू, हाँ, कि टीचर्स कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसा लीनियर बनाता है लीनियर इक्वेशंस का कि जिसमें रेशियो दिया हो तो ना दे वो। यूक्लिड ज्योमेट्री सर कंप्लीट चैप्टर पहले भी डिलीट हो गया था, इस साल भी कुछ स्कूल्स में कराया गया है, मत कराएं सर। रिक्वेस्ट ऑनलाइन तो बिल्कुल भी ना कराएं। स्टूडेंट्स वही है सर, हम लोग अपनी एफिशिएंसी पूरी नहीं दे सकते। somebody is asking representation of root 9.1, आई थिंक मैडम इसे करवाएं, जरूर करवाएं। रूट 9.1 को नंबर लाइन पे सेमी सर्कल मेथड से। अच्छा, इस चीज में एक चीज और ऐड करूंगा, सपोज रूट 5 नंबर लाइन को में रिप्रेजेंट करना आता है, आई नो मेनी स्टूडेंट दे डिड, उन्होंने सेमी सर्कल वाला मेथड 5 1 सेमी सर्कल आफ्टर ड्राइंग perpendicular bisector, then this one is root 5, तो this one is also acceptable method। उस बच्चे का दिमाग देखो सर कि उसने कितना अच्छा सोचा कि हम रूट 5 को भी नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये चीज मैं कहूंगा कि जरूर एक्सेप्ट करें। राहुल सर, आप इस क्वेश्चन पे कुछ कहेंगे? मैं कहूंगा सर व्हाट आई फील इज, ठीक है सर, राहुल सर आप no what I feel is root जो like root of 5.1 and root of 9.1, I think last year also they were shifted yes, to this activity method। जी so but majority schools में सर वो करवाया गया, तो वैसे तो अच्छा अगर हम ऑनलाइन में नहीं लेकर चलें तो इस क्वेश्चन को तो ऑनलाइन समझाना और भी मुश्किल हो जाता है। this was in activity method and
और सेकंड जो यूक्लिड की बात हो रही है, आई थिंक लास्ट ईयर भी उसमें नॉट फॉर असेसमेंट था, बट टीचर्स कुड हैव टॉट. अब इस बार यूक्लिड है ही नहीं, इट्स नॉट टू बी. यस सर, बट ये सर टॉपिक भी ऐसी हैं कि मोस्टली टीचर्स इनको भी करवा चुका है. बट मेन चीज जो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, अभी मैं नीचे चैट बॉक्स में पढ़ रहा था कि बेस 2 और परपेंडिकुलर 1, दैट इज, वो तो मेथड है ही है, लेकिन जैसा विशाल सर ने कहा कि इस मेथड को भी अप्रिशिएट करना चाहिए. ये नहीं कि आपने बेटा रूट 2, रूट 3, रूट 5 तो वही से परपेंडिकुलर और उससे करने हैं, और जो डेसिमल वाले हैं वो सिर्फ आपने सेमी सर्कल से करना है. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये भी एक बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, 100% इसको लीजिए. वेरी गुड थिंकिंग सर. 5 रूट 5 को 5 और 1 लेके सेमी सर्कल से करना, आई वुड बी रियली हैप्पी, और उसको गुड भी देंगे, एक्सीलेंट भी देंगे. वेरी गुड थिंकिंग सर. जैसे आई रिमेंबर मैंने बच्चे को 10 क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, फिर रूट 41 दिया, रूट 13 दिया. उसने 10 के 10 क्वेश्चन सेमी सर्कल बना के दे दिए सर. सर उसने इतना अपने आप को सिंप्लीफाई कर दिया, और उससे मुझे सीखने को मिला यार. ऑब्वियसली हम भी तो ऐसा सोच सकते थे पहले उससे, बट सर we learn from the students. अभी तक भी कभी-कभी the way some of the students solve a question, we just sit and just notice कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है. There was a student, like every question he used to do in a different way. He got, I think, first 20 में उसका IIT में भी रैंक आया था long time back. But then I always used to preserve his answer sheets, and I used to just really feel very the creative answers he used to write. चलो lines and angles. Meanwhile, आप सभी नोट करिए चैट बॉक्स में, I have shared the website link of O Labs, very wonderful initiative by Government of India in collaboration with I think CDAC Mumbai and Amrita's विद्यालय, something like that. So इसमें 9th-10th के मैथ्स के प्रैक्टिकल्स के ऊपर बहुत बहुत अच्छा विजुअलाइजेशंस दिए गए हैं, और आप उसको स्क्रीन शेयर करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस में शो कर सकते हैं. इट विल रियली हैव अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट. साइंस के लिए 9 to 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उनके लिए अवेलेबल है. 9th-10th मैथ्स है आज के टाइम में जो इस समय फंक्शनल हो चुका है, और इसी तरह से उसमें और इंग्लिश लैब के बारे में बहुत कुछ है. यू मे रिकमेंड दिस टू योर अदर स्कूल टीचर्स आल्सो. या प्लीज फर्दर. जी सर. सो लाइंस एंड एंगल्स नो इश्यू. आगे बढ़ते हैं सर. सर अभी मैं चैट में पढ़ रहा था कि टीचर्स ने कहा सब कुछ करवा दो, लेकिन उनको कहो कि रिवाइज जब करना है वो अपने सिलेबस करना. बिल्कुल करेक्ट, डेफिनेटली. एएसए कॉन्ग्रुएंसी काफी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं. जब भी काफी स्कूल्स में तो करवाते नहीं है, बट जहां भी करवाते हैं तो ये हट चुका है. और इन इक्वालिटीज ऑफ साइड अगेन डायरेक्ट 7.4 एक्सरसाइज हट चुकी है, तो इसमें भी आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स, इट हैज टू बी कंप्लीटेड. पूरा चैप्टर हमने करवाना है विद ऑल द थ्योरम्स जो ऑलरेडी सिलेबस में है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड. इसमें काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते थे कुछ क्वेश्चंस में, बट अगर स्टूडेंट्स के एंगल से देखा जाए तो दे विल फील हैप्पी. 9th में वैसे भी ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा है, 10th से कंपेयर करें तो इट्स ओके, पॉजिटिव साइन है. नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स में केवल 2 थ्योरम्स कटी हैं, 10.5 and 10.10. 10.5 is only one circle can be drawn through 3 non-collinear points. And 10.10 angles in the same segments are equal का converse है. So only 2 theorems हमने नहीं करानी. इनके ऊपर application based शायद ही एक आध क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप जरूर कराएं, थ्योरम आप छोड़ दें प्लीज. सर थ्योरम का भी थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि थ्रू जनरली व्हेन यू आस्क अ स्टूडेंट कि हाउ मेनी, we can motivate कि 3 points से there is always be a unique circle. And दूसरा है वो इतना ज्यादा because there are 13 theorems in all. I think these 2 are not too big. जी. कंस्ट्रक्शंस में भी डायरेक्ट सिर्फ एक क्वेश्चन कटा है व्हेन पेरीमीटर इज गिवन एंड बेस एंगल्स आर गिवन. हालांकि इस क्वेश्चन को व्हेन आई वाज इन 9th तब भी ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में था, आज भी है. जब मैंने बनाया था और जब आज बच्चों को भी बनाते हुए देखता हूँ बड़ा खुश होते हैं. एक आइलैंड जैसा फिगर बना है, बट इट्स ओके, इट हैज बीन डिलीटेड. बच्चों को मजा आता है कंस्ट्रक्शन में. विशाल सर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है ये, लाइक इन द सेंस दिस इज द लास्ट कंस्ट्रक्शन, और मुझे लगता है 9th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू डू इट. उसमें जो एक्सटीरियर एंगल का सम वो सॉल्व करके आई थिंक ऑनलाइन टीचिंग में इट्स डिफिकल्ट. मतलब सॉरी, मैं 2 मिनट इस एक्सरसाइज में मैं लेना चाहूंगा आप सभी से.
हो सकता है आप सब ये चीज यूज भी करते हो, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5 ये है, वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द बेस इज 12 एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 18 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम हमें 18 दिया हुआ है। इसमें एक छोटा सा मैं पार्ट चाहूंगा हर बंदा यूज करे। अ लाइन ऑफ 12 सेंटीमीटर देन 90 डिग्री एंगल। अब पहली प्रॉब्लम ये आती है, जनरली जो हम स्केल यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो मोटिवेट देम कि उनको आप बल्कि खुद कहें, सोचो 18 का कैसे बनाएंगे। तो नॉट द आर्क ऑफ 15 and 3, आस्क देम टू ड्रॉ द आर्क ऑफ 9 and then again 9। तो इससे स्टूडेंट्स दे विल फील इजी। सेकेंड थिंग, आप इस पॉइंट को लेट इट बी ए और बी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इट नीड्स स्केल ऑफ लार्जर साइज। तो इट्स बेटर वी डोंट ज्वाइन ए बी, वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए पर आपने कंपास रखा, बी पर आपने कंपास रखा, तो ए बी को ज्वाइन करे बिना भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो ये दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा आप सभी के लिए, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज स्टिल इन द सिलेबस, बट इसकी डायमेंशंस इतनी बड़ी है कि हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है 15 सेंटीमीटर लेंथ का, वो यूज नहीं कर पाते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर नाउ। ठीक है, एक्स्ट्रा ईमेल देना भी नहीं चाहिए कि एक जब एग्जाम में दे तो डायमेंशंस को, ये तो सर एक माइंड बच्चा यूज करे इसीलिए था। डेफिनेटली। हेरोन्स फार्मूला में 12.2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दो क्वेश्चंस हैं सर। यहाँ मैं राहुल सर, पंकज सर, 1 मिनट आपसे चाहूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम कंसीडर करें या डिलीटेड पार्ट में या रहने दें? डिलीट सर। एक्चुअली ट्रेपेजियम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। जब राहुल सर आप भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ऑल द 4 साइड्स आर गिवन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ऑल द 4 साइड्स आर गिवन, तो इसमें 4 vertices। तो what we'll do, we'll find the area of the triangle and then 4 sides sir, sides। Okay sir। all the 4 sides are given। yes sir, yes। in that case na actually ये figure होती है, we draw a parallel line to this, then we find the area of this triangle, yeah, and then we find the height निकालते हैं, then area of trapezium। तो actually इसमें लिखा है area of quadrilateral by application of Heron's formula। in this question also Heron's formula का minor use हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात देखो सर, सपोज दिस साइड इज 6, दिस इज 6, दिस इज 10 एंड डाउनवर्ड इज 16, तो ये क्वेश्चन सिलेबस में आ जाता है √3/4 a² से। सर दिस इज एक्चुअली द Heron's formula to find area of triangle is there, the only thing is उसका एक्सटेंशन है क्वाड्रिलेटरल, दैट वो नहीं करता है। तो इसमें नहीं माने, इसमें तो ट्रायंगल ही लग रहा है ना। जी तो इसको डिलीट ही करके चले फिर। मैं तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल सर राहुल सर, ट्रायंगल तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में भी लगता है कि आप 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं तो ट्रायंगल्स का एरिया करके ऐड करते हैं। तो डेफिनेटली जहां पर उन्होंने अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेंशन किया है यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ Heron's फार्मूला, तो डेफिनेटली अब उनको ये चीजें जितनी भी है क्वाड्रिलेटरल बेस, चाहे वो रोम्बस है चाहे वो स्क्वायर है, हाँ आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस दीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर इज गिवन, इक्वल साइड इज गिवन, या आप रेशियो दे दीजिए, तो डेफिनेटली जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें जितने भी देयर इज अ क्वेश्चन ग्रेजिंग ऑफ काउज, वो भी डिडक्ट हो जाता है। हां, काउ ग्रेजिंग एरिया है ना, काउ ग्रेजिंग डेफिनेटली सर, रोम्बस है चाहे कुछ भी है, बिल्कुल होता है तो क्वाड्रिलेटरल जी। तो इसके अंदर फिर हम अगेन दैट डिपेंड्स ऑन टीचर कि वो करवाए या ना। थोड़ा मैंने कहा टीचर स्पेसिफिक भी है कि अगर टीचर, क्योंकि अच्छा ये चैप्टर भी ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स हो सकता है Heron's फार्मूला का चैप्टर भी करवा दिया हो, क्योंकि कई बार सीरीज में चलते हैं तो ये भी करवा चुके होंगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया पूरा करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट। स्टैट्स में हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग लेंथ, स्टूडेंट्स विल फील कंफर्टेबल। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है काफी स्टूडेंट्स के लिए भी, और इवन टीचर्स फील सम टाइम प्रॉब्लम, जो फ्रेशर्स हैं हो जाता है ऐसा। अच्छा हुआ ये डिलीट हुआ एटलीस्ट इस साल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जरूर है, ना भी होता तो चल जाता। मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द अनग्रुप डाटा, ये जरूर मैं कहूंगा नहीं होता डिलीट तो अच्छा रहता, लास्ट एक्सरसाइज थी, बट इट्स ओके अगर डिलीट हुआ है। सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा सिलेबस में रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 मेनली, जो ग्रुप डाटा का है, जो ग्रुप डाटा है, एक टेबल है उसका मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बारे में आई विल से सजेस्ट कि आप अपने आप देखें।
he give an example where mean is appropriate measure of central tendency and mean is not appropriable measure of central tendency. So बेसिकली क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं. वो बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनेशन, अगर आप उनको स्टैट्स की, अगर हम सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में बच्चों को बताते हैं, मीन मीडियन मोड, अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि कहाँ पर हमें मीन यूज करना होता है, क्योंकि अगर हम हायर में जाएं, अगर इन तीनों को हम एक एवरेज की तरह काउंट करते हैं. बट मैंने तो यहाँ तक देखा है कि स्टूडेंट्स को अगर आप एक रॉ डाटा देखकर ये भी पूछ लो कि बेटे अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास और इसके मीडियन मार्क्स 60 हैं, तो आप बताओ क्या है, तो इजीली बता देगा सर 25 के कम, 25 के ज्यादा. मोड 50 है तो बता देंगे सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 50 होंगे. लेकिन अगर किसी से पूछ लो बेटे एवरेज 50 है, इसका क्या मतलब है, सर मतलब सबको ऐड करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि उनको एवरेज का कॉन्सेप्ट, मीन का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि मीन कौन सा नंबर होता है. डेविएशंस, क्योंकि पहले अगर याद हो सिग्मा xi माइनस x बार इक्वल्स टू 0, ये एक्चुअली मीन की डेफिनेशंस थी कि वो एक ऐसा नंबर जहां से सारी डेविएशंस का सम 0 होता है, चाहे वो 3 डेविएशन ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो, 47 कम हो, या 20 ज्यादा हो, 30 कम हो, जैसा भी. लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि मीन का ये, तो यहाँ पर हमें ये थ्योरी में जाना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए आप विशाल सर कह रहे हो 6 में कहाँ पर एप्रोप्रिएट है. तो अगर ये थ्योरेटिकल अगर टीचर समझाता है उसको बच्चों को, तो डेफिनेटली वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर एप्रोप्रिएट है. सर व्हाट आई फील इज कि ये जितने भी जो डिलीशंस हैं, इट इज लाइक फॉर अ स्टूडेंट इफ ही इज इवन इफ ही इज टॉट सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डिलीटेड, उसका थोड़ा सा हम आइडिया दे सकते हैं. इफ वी गेट टाइम दैट इज वेलकम. अब बच्चे को ये है कि इसमें से असेसमेंट नहीं है, तो उसका थोड़ा वर्कलोड, एंड स्पेशली अभी तक ये हमारी कंडीशंस आर नॉट इम्प्रूविंग, वी डोंट नो कितने टाइम तक स्कूल में नहीं जा पाएंगे, एंड ऑनलाइन में स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डिजिटल और फ्रेम से इतना ज्यादा उसका स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो गया है. इट इज बेसिकली फॉर दैट. तो जो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं उसमें इज नॉट फॉर असेसमेंट, और कुछ अगर लगता है आपको और किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, फॉर्मूला का, कॉन्सेप्ट का थोड़ा यूज हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज शेयर विद द स्टूडेंट्स एंड वी कैन डू इट इन द एक्टिविटीज. स्पेशली सर 9th स्टूडेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा टीचर से कि उनका बर्डन कम ही रखें. ये नहीं कि मैंने तो करवा दिया है, कर दिया है, तो बेचारे कैसे पढ़ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड पूरी चीज कर पा रहे. जब हम फिजिकली पढ़ाते हैं उनको जाकर, वो एक अलग इम्पैक्ट होता है. ऑनलाइन का हमें ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है. उनका स्क्रीन टाइमिंग कितना बढ़ गया है, कितना आंखों पे स्ट्रेस, थक जाते हैं. तो ये पंकज सर, माय सन इज इन 10th. वो सुबह पता नहीं 8 o'clock से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, एंड ही कंटिन्यूअसली सिट्स. ऑन संडे ही रिलैक्सेस अ बिट. तो मैं देन एट द एंड ऑफ इट आई फील कि बेटा जस्ट रिलैक्स, कुछ ज्यादा नहीं होगा. अगर तुम्हारे 99 की जगह 95 आ जाएंगे, 94 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, जस्ट हैव दैट थिंक, यू हैव टू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, बी क्रिएटिव और अच्छा मैथ्स करिए. ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं किया या ये करना है, ये नहीं करना. तो ब्रॉडली वी आर टेलिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आल्सो कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट देयर, बाकी सब हमें करना है. चलो प्रोबेबिलिटी सर. Probability again there is nothing, so it's all about 9th class. Right. And now Bajaj sir. Right, thank you sir. वैसे आज के लिए वोट ऑफ थैंक्स आरपी सिंह सर हैं, वो करने वाले हैं. बट एक सजेशन मैंने एक तो दिया है, यहाँ पर जो फीडबैक फॉर्म हमने दिया है, शेयर करा है, प्लीज डू फिल दैट फीडबैक फॉर्म. उसमें स्पेशली एक क्वेश्चन हमने लास्ट में रखा है कि इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी डाउट और एनी रिकमेंडेशन, एनी सजेशंस, और यू थिंक एनीथिंग व्हिच इज नॉट आंसर्ड येट, बिकॉज वी हैव नो आंसर टू एवरीथिंग, राइट? सो बट वी विल ट्राई आउट टू रीच सीबीएसई ऑफिशियल्स एंड पुट फॉरवर्ड आवर डाउट जो भी आपकी तरफ से आए हैं, और अगर उसका जो भी पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेगा, दैट वी विल लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. तो इसलिए फीडबैक फॉर्म को फिल करना प्लीज मत भूलिएगा. एंड फीडबैक फॉर्म के एंड में आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करने का लिंक में मिल जाएगा. वी हैव गिवन आवर नंबर्स, वी आर इन टच थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, तो अगर कहीं भी कोई डाउट आता है यू कैन ऑलवेज आस्क. इनफैक्ट आज की मीटिंग में हमारे साथ मिस्टर ऋषभ विज भी हैं. ही इज फ्रॉम जीवन सन्स पब्लिकेशंस, और आई थैंक हिम फॉर मेकिंग एफर्ट्स फॉर sharing his ideas regarding deleted questions. I was also talking to him along with my team, so thank you so much. See, we have just had a good, very healthy discussion, and we were not like thoda variation bhi tha in how to interpret. These are our personal opinions, and Yes. Teachers can wait for any other update from CBSE.
Yeah, sure, बिल्कुल definitely, बिल्कुल sir, बिल्कुल यही चाहते हैं सर। definitely. Rahul, meanwhile, So, हाँ, आरपी सिंह सर, अगर आप अरे आपकी आवाज ना, हाँ जी, I'm concluding just one जी सर, जी sentence. सर, जी सर. Thank you very much again to all of you for joining the session. I hope it will have been fruitful for you. And in coming days also, I will request Amit to organize all such sessions when time to time it is needed. Thank you very Yes, much. sir. Very soon we'll be coming up with a session for applied mathematics. Many teachers were requesting for that. So I'm in touch with few people who will be able to guide us about this applied mathematics. And also in our pipeline, we have another plan. We were discussing with Sanjeev sir also कि कुछ teachers के लिए अगर हम ऐसे session करें, maybe 10 days या 15 days में हमारा कुछ fortnightly ऐसा कुछ रहे जिसमें concepts के ऊपर बात हो, जो है आज चीजें हम delete करवा रहे हैं due to any reason, बट टीचर्स की नॉलेज है वो अपग्रेड करनी है, तो उसमें और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, विल वर्क अपॉन दैट. Thank you, RP Singh sir. Thank you, Sanjeev sir. Rohit, thank you. Pankaj sir, Rahul sir. I think OP Gupta sir is also here, and all those who have made their efforts to make this success. Now, I again request everyone to please switch on your cameras. Sir, you too, please. Please. मेरा बंद है? Oh, हाँ I'm जी। really sorry. Oh, sorry. Do not forget to fill that feedback form. सीधे बैठ जाए। सीधे बैठ जाए। I don't know, Okay, it's sir. not working. Wait for a minute. My camera is not working. So we all are waiting. कल भी लास्ट मोमेंट पे अमित सर का कैमरा काम नहीं नहीं वो करेगा भी ऐसा करेगा। तो नहीं वो अभी फेस वॉश करने गए हो ऐसा Exactly. नहीं सर को जरूरत नहीं है। आप लोग को हाँ My system is hanged. I'm not able to do anything. सर कैमरा फिर ऑफ कर लीजिए ताकि हम आपका फोटोग्राफ देख सकें इधर। एक सेकंड चलिए, मैं please click the photograph. I mean, the system is totally hanged. Please continue. ओके सर मैं करता हूँ, एक मिनट स्टॉप वीडियो। डाल देंगे फिर ऊपर से स्टॉप भी नहीं हो रहा। हाँ स्टॉप भी नहीं हो रहा। आगे हो गया स्टॉप। हो गया ठीक। I'm just full screen. Please smile. एक और ले लियो। वीना मैम थोड़ा आगे आइए। मनीष सर कैमरे में। ग्रेट। ओके मैं सेकंड स्क्रीन पे जाता हूँ। We have two different screens. Amit sir, it's done now. Thank you so much everyone. एक साथ एक ही स्क्रीन पर सबको देखना कितना अच्छा लगता है इस पैंडेमिक में। Such a great feeling it is. Amit sir, please. Yeah. Oh, yeah. I was muted. Yes. Thank you, everyone. Once again, we pray to God for your good health. Be safe. Be at home. Online classes लेते रहिए, but कोशिश करिए बच्चों पे ज़्यादा pressure ना आए. बिल्कुल। Yeah, please. Thank you very much. And Thank you, please do everyone. fill the feedback form.